आई थिंक यू मस्ट हैव सीन ब्रिक ईट, देखी है ना? यस मैम। क्या यूज होता है ईट का? बनाने में। दीवार बनाने में या घर बनाने में ना. हाँ. So consider brick as a cell, and combination of bricks makes what? Wall. Okay. So if we are considering brick as a cell, so combination of these bricks will form what? A wall. And a wall is what? A tissue. So these brick, it is one brick and too many bricks are joined together. So they will form what? Wall. Wall which is tissue. So same way. Okay, then start my button. So today we are going to study this tissue chapter. कैसे? Combination of cells which are similar in their structure, similar in their appearance, and combine to perform similar functions. They are called as what? Tissues. So you can consider anything in real life and combine it with this tissue or cell. Okay, if we see a hive of honeybees, so one particular hive is what? We can consider it as cell. But too many particular rooms of that hive, consider is a tissue. Okay. So all in all, tissue is what? The group of cells which are having common origin, common function, and in plant and animal cell, both kind of cells are having tissues. Animal cells में tissue का different function है, different kind of tissues are there. In plant cell, different kinds of tissues are still there. They perform various kind of functions. So in this chapter, we will stick to only plant cells or plant tissues. In the next chapter, I will start with the animal tissues. Okay. First of all, definition will be what? Tissues are group of cells which are having common origin, common function. Okay. And they sometimes perform similar function also. And they sometimes perform different function if they are complex in their origin. Okay. Like complex tissues. So tissues mainly plant में दो तरह के होंगे, मेरिस्टेमेटिक and permanent. Let me start with the this one which I have drawn, this paper or chart. Okay, कैसे कैसे tissues का differentiation हुआ है और you can say classification. Tissues are plant tissues, animal tissues. So animal tissue we are not going to see because it is in the next chapter. Plant tissues we have to study in this chapter, so we are going to see only those. Plant tissues of two type. Two type means one is परमानेंट, अनदर इज मेरिस्टेमेटिक. फर्स्ट क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक. ये पहले बनते हैं, ये बाद में. ठीक. नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी काइंड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिवीजन. One basis is also there based on function. Okay, based on function. So main in 9th and 10th हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं. Apical, intercalary, lateral, based on position. You must have studied, I think, in 9th class mainly. This chapter is given. So अब 11th class है तो थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन बढ़ेगा और क्लासिफिकेशन आएगा. ओके. नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमोडियल मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होगा. प्राइमरी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो यंग स्टेज रहता है. सेकेंडरी मतलब यंग या मैच्योरिटी स्टेज में जो मेरिस्टेम होंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी. नाउ बेस्ड ऑन पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, रूट या शूट के टिप पे जो पाया जाएगा, वेदर मींस ये शूट के टिप पे होगा या तो फिर ये देखो ऐसे, ये रूट का कंसीडर कर लो, ये शूट, तो इसके टिप पे या इसके यहाँ पे टिप पे जो भी मेरिस्टेम की एक्टिविटी होगी, दैट दोज मेरिस्टेम एक्टिविटी विल बी एपिकल मेरिस्टेम. देन इंटरकैलारी मेरिस्टेम. इंटरकैलारी मेरिस्टेम्स आर दोज मेरिस्टेम्स व्हिच आर found on the sides, like if we consider this one, so ये side में और ये side में जो भी मेरिस्टेम होंगे which will help the longitudinal growth of the plant, those kind of meristem are intercalary one. Then we will see lateral ones. Lateral ones like those kind of meristems which will help the plant to grow in their girth, यानी कि जो प्लांट का मोटापा बढ़ाए. तो अल्टीमेटली देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है? प्राइमरी वन है, क्योंकि ये दोनों अभी भी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं. ठीक है. बट ये लैटरल वंस क्या करते हैं? ये अब मोटापा बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, प्लांट मोटे होंगे. ग्रोथ करने के बाद मोटापा आता है. तो दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. अब आता है क्या? बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिवीजन, वेजिटेटिव शूट एंड रिप्रोडक्टिव. तो वेजिटेटिव शूट अल्टीमेटली यहाँ से पता ही चल रहा है, दोज मेरिस्टेम व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव शूट एपेक्स कहलाएंगे. एंड दोज मेरिस्टेम्स व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स.
बेस्ड ऑन फंक्शन 3 डिफरेंट काइंड तो होता है, एक तो होता है एपिडर्मल, दूसरा होता है वैस्कुलर और तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को फॉर्मेशन करेगा वो हो जाएगा एपिडर्मल, वो होता है डर्मल मेरिस्टेम, ठीक। दूसरा जो वैस्कुलर कैम्बियम्स, यानी कि in this you will see in the later part of the chapter, तो जो वैस्कुलर कैम्बियम्स, इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, ये सारी चीज को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो सारे मेरिस्टेम क्या हो जाएंगे, वैस्कुलर मेरिस्टेम। एंड ग्राउंड टिश्यूज, यानी कि जो इनर पार्ट, मोस्ट इनर पार्ट ऑफ द टिश्यू सिस्टम को फॉर्मेशन करता है, दैट काइंड ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम। Okay, so these are all 4 different kind of meristem on which they are divided, and जिसके basis पे further we will study each and every part. अब आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू इटसेल्फ मींस कि ये मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं। सेल डिवीजन में जैसे हमने देखा था क्या, कि कुछ सेल क्या करते हैं, G1, S, G2 और AN ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि कुछ सेल्स G0 फेज में अल्टीमेटली आ जाते हैं वो G1 के बाद डिवाइड नहीं करते हैं, वो G0 फेज में क्या करते हैं, मैच्योरिटी पे आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो दैट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो जब सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, दोस टाइप ऑफ टिश्यूज आर व्हाट, परमानेंट टिश्यू। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, now these permanent tissues are simple, compound and special. A special one we are not going to study because it is very higher above study level, okay. So we will stick to the simple and complex. Simple one again further divided into 3 kinds: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. अब यहाँ simple और यहाँ complex क्यों है? Simple means these are formed of only one kind of cells and they will perform all the cells, जितने भी cells combine हुए हैं वो सारे ही सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या है, these will be formed of different kind of cells and each group of cells will perform different functions, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स में आएगा और ये सिंपल में। नाउ सिंपल will be differentiated into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। ये हम लोग बाद में देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। Then complex one will include phylum, xylem and phloem, sorry phylum बोलते हैं, xylem and phloem। Xylem will include again 4 different kind of cells: xylem, tracheids, vessels, parenchyma and fibers। Out of 3 ये 3 डेड होंगे। यहाँ पे सीरियल वाइज गलत है, सिर्फ ये लिविंग होता है, अदरवाइज ये फाइबर्स, वेसल एंड ट्रैकेड्स ये डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम में क्या है, these 3 will be living and ये फाइबर्स वाला क्या होगा, डेड होगा। ये जब डिटेल पढ़ेंगे यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड। ये स्पेशल टिश्यूज क्या होते हैं, these are secretive tissues, permanent secretive tissues। इसमें भी क्या है, lactiferous and glandular। तो ये क्या होते हैं, जो secrete करते हैं, like if you have seen rubber plant, तो वो rubber kind of white secretion निकालते हैं। So these kind of tissues are what, special tissues, ठीक है। और ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है, just we will see in the classification part, okay। तो lactiferous and glandular, जो gland release करते हैं वो glandular, और जो lactiferous या चिपचिपी kind of सीक्रेशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लैक्टिफेरस टिश्यूज। इसमें भी वेसल्स और सेल्स हैं, इसमें भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक्सटर्नल, इंटरनल, फर्दर डिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल टीच। सो यहीं पे देख लो कि नर्वस टिश्यू बेसिकली 4 ही होते ही हैं, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल। जो भी डिवीजन है एपिथेलियल और कनेक्टिव का है, मस्कुलर और नर्वस में कम डिवीजन है, और कनेक्टिव इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस एपिथेलियल वन। एपिथेलियल, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर, इसमें भी 2 टाइप। कनेक्टिव में ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोस। मस्कुलर में स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। अगेन देन नर्वस टिश्यू। These are all part of animal tissues which will be studied in the next part. Now coming back to our own chapter. कहाँ से स्टार्ट करें, डिवीजन। 2 टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक वन एंड परमानेंट वन। वैसे these are not in the syllabus of class 11, so I'm going to just cover the whole point, okay, not in detail activity. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये चीज आई थिंक वी आर स्टडिंग फ्रॉम 6th or 7th क्लास। पहले छोटे छोटे पार्ट में दिया रहता था, नाउ इट विल बी गिवन इन डिटेल। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कंबाइन होकर टिश्यू बना लेते हैं। स्टोर्ड फूड नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो लोग फटाफट डिवाइड करते रहते हैं। जब डिवाइड करते रहते हैं तो एनर्जी फटाफट कंज्यूम करते रहते हैं, तो स्टोर फूड करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए स्टोर फूड एब्सेंट। थिन वॉल्ड होते हैं बिकॉज दे आर अगेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, तो उसमें वॉल का थिकनिंग होने का टाइम ही नहीं मिलता। इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्टिव होते हैं, सेम रीजन, बराबर डिवाइड होते रहते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस तब बनेगा ना जब सेल्स रुक जाएंगे, कहीं डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। देन इमेच्योर क्यों होते हैं,
बार बार नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, तो इसलिए इमेच्योर होते हैं। अब जब ये लोग स्टोर ही नहीं करते कोई फूड और बराबर डिवाइड करते रहते हैं, तो इन लोग के पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। वेस्ट वैक्यूल्स क्या करते हैं, इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स। तो जब बराबर डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं ज्यादातर निकलता। तो ज्यादातर सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी होंगे तो दे विल बी प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल साइज। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म। रीजन विल बी द सेम। बराबर डिवीजन और होता है, तो बराबर डिवीजन के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस, विच इज ब्रेन ऑफ द सेल डिवीजन। सारी एक्टिविटी तो न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है, तो इसलिए दे विल बी हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म होगा तभी तो डिवीजन करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इजीली। ओके, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद हम लोग इसका डिवीजन भी देखेंगे। देन परमानेंट टिश्यू, those cells which gets mature and do not divide further, cells will undergo क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब कि वो जी नॉट फेज में आ जाएंगे डिफरेंशिएट होके, और वापस से माइटोसिस मियोसिस में नहीं जाएंगे। स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि अब देखो ये मैच्योर हो चुके हैं, इनको चाहिए क्या, रेस्ट, बार बार एनर्जी थोड़ी लगाएंगे, सो दे कीप समथिंग एज अ स्टोर फॉर देयर रिलैक्सेशन पॉइंट। ओके, रिलैक्स करने के लिए आराम से बैठ के अपना खाना स्टोर करके खाते हैं उसको, ठीक। अब देखो थिन वॉल भी हो सकते हैं, थिक वॉल भी हो सकते हैं। थिक वॉल कहाँ मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में मिलेगा, और थिन वॉल कहाँ मिलेगा, पेरेन्काइमा में मिलेगा। द इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट। अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होगा, कहाँ कहाँ एब्सेंट होगा। मैच्योर सेल्स मैंने पहले बता दिया। वैक्यूल्स, देखो अब जब खाना स्टोर कर रहे हैं, थिक वॉल्स भी हैं, तो स्टोरिंग मटेरियल में वेस्ट प्रोडक्ट तो रिलीज होगा ही, सो दोज वेस्ट प्रोडक्ट विल बी स्टोर्ड वेयर, इन द वैक्यूल, वेयर साइज भी अच्छा है यहाँ पे और नंबर भी वैक्यूल्स का ज्यादा है। Any doubt in permanent and meristematic tissues? Okay. No, ma'am. No doubt. वैसे these are very easy because ये 6th 7th में भी देखा, 9th में भी देखा, so I don't think there should be any problem. आते हैं भाई tissue and tissue system. Tissue क्या है, group of tissue is a group of cells having common origin and usually performing common function. Then plant body is made of different kind of tissues, सबको पता है। For example, in leaf various cells commonly perform the function of photosynthesis. यहाँ से देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, द ग्रोथ इन प्लांट इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, मेरिस्टेम्स। एंड यही मेरिस्टेम क्या बनाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दैट इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन एंड हैव रिटेन्ड देयर पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेम का मतलब ये क्या है कि वो प्रॉपर डिवीजन करता ही रहता है, वो थकता नहीं है, उसको बैठना नहीं है, ठीक है, वो हमेशा डिवीजन फॉर्म में ही रहेगा, जहां बैठ गया वो डिफरेंशिएट करके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, दे आर लिविंग एंड कंटेन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। शेप ऑफ सेल इज स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगल, ओवल, कोई भी हो सकता है। Cells are compactly arranged without intercellular spaces, are interconnected by plasmodesmata. See, जब number of cells combine होंगे तो plasmodesmata connection मिलेगा नहीं. This we have studied in cell chapter. Nucleus is large and present either in interphase or subphases of division. So, बराबर डिवीजन चल रहा है सेल का, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इंटरफेस, मियोसिस, माइटोसिस चलता रहेगा। सेल वॉल इज थिन विद ओनली प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है। अगेन सेम रीजन, बराबर कंटिन्यूअस डिवीजन में है तो सेकेंडरी वॉल का जरूरत ही नहीं है। देन क्या क्लासिफिकेशन में, बेस्ड ऑन पोजीशन के बेसिस पे क्या क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलारी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे तो हम लोग पहले ऐसे ही देख लेते हैं पोजीशन में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं, फिर वी विल सी। एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेस द लेंथ किसका, रूट का और शूट का, कहाँ का, टिप का, लाइक दिस वन। कि मान लो ऐसे है, ये एक शूट है और यहाँ पे और ये हमने बना दिया रूट। सो ये टिप पे जो यहाँ ये रहे, यहाँ पे नहीं वैसे टिप, ये टिप पे क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ जो टिप पे रहेगा वो रहेगा क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, अब यही देख लो, जब ये जाहिर सी बात है साइज या लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो हर मेरिस्टेम तो यहाँ से यहाँ ऊपर आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे छूट जाता है, और जब कुछ कुछ छूट जाता है तो वो क्या करता है, लैटरल बड्स रिलीज करता है। और लैटरल बड्स से क्या होते हैं, साइड में जो प्लांट के ब्रांचेस इमर्ज होते हैं वो इन्हीं मेरिस्टेम जो यहाँ छूट जाते हैं उनसे रिलीज होते हैं। सेम वे रूट में भी यही होगा, ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और फिर यहाँ पे भी वही चीज
यहाँ पे जब जमा हो जाएंगे तो यहाँ पे आने में कुछ क्या हो जाता है, छूट जाते हैं। जैसे अब रेस लो तो कुछ आगे हो जाएंगे, कुछ पीछे हो जाएंगे, तो जो यहाँ पीछे छूट जाता है वो भी क्या है, रूट हेयर ब्रांचेस रिलीज करता है। ठीक है, सो ये कौन करेगा, एपिकल मेरिस्टेम। नाउ प्राइमरी ग्रोथ क्यों, क्योंकि देखो अभी मेच्योरिटी लेवल है, अभी नया नया प्लांट डेवलप हो रहा है, तो क्या प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी ग्रोथ ही प्रोवाइड करेगा। While increasing the length of meristem, some apical meristem are left behind। वही सेम चीज बताया कि जब जो लेफ्ट बिहाइंड कर जाते हैं वो क्या करते हैं, एपिकल बड का फॉर्मेशन करते हैं, और एपिकल बड क्या हो जाता है, फिर लेटर ऑन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्रांचेस। प्राइमरी मेरिस्टेम से बना ही है तो इसलिए प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ ऐसे रहेगा, ये formed from primary meristem, that is why it is providing primary growth. Now intercalary meristem, अभी मैंने बताया intercalary मतलब ही क्या है, बीच का। जैसे if we take like this, तो ये नोड हो गया, we have studied this one in previous chapter, ये नोड हो गया। अब नोड के नीचे देखो ये क्या है, ये लीफ, एक तरह से मान लो if we take example of grass, ये ग्रास है, तो ग्रास तो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ही जमीन में ग्रो करते हैं, यहाँ पे ये रूट पार्ट। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का ये तो नोड है, ये बीच का क्या होता है, इंटरनोड ना। तो अब दो इंटरनोड के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग टिश्यू देख रहे हैं। ये पिंक वाला देखो, ये ग्रोइंग टिश्यू है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगेन लेंथ इंक्रीज हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग टिश्यू है, दीज ग्रोइंग टिश्यूज आर व्हाट, इंटरकैलारी मेरिस्टेम्स। क्योंकि यहीं से फिर क्या होगा, नए नए स्टेम रिलीज होंगे, नए फ्लावर फॉर्म होंगे, नए लीफ का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो सेम इट इज रिटन प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू। कौन से टू मैच्योर टिश्यू, देखो ये इंटरनोड क्या है, मैच्योर टिश्यू है, मेरा क्या। ठीक, अब इंटरकेलेटेड बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू, सेम वही सेम चीज लिखा है, प्रेजेंट कहो या इंटरकेलेटेड। इंटरकेलेटेड मतलब कि इंसर्टेड इन बिटवीन टू मैच्योर टिश्यूज, इंक्रीजेस लेंथ, कैसे, लॉन्गिट्यूडनली इंक्रीज करता है, परफॉर्म प्राइमरी ग्रोथ। अभी जब देखोगी ना फंक्शन पे उस पे, तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा। देन ये भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म हुआ है। अब ये वाला देखो, लैटरल मेरिस्टेम, ये क्या करता है, जैसे ये ले लो ब्रांच एक और ये ले लो दूसरा। ठीक, सो अब ये क्या करेगा, सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल मतलब कि ये ऐसा होता है। इसका काम क्या है, बाद में डेवलप होता है, मतलब कि पहले ये दोनों डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इट विल फॉर्म लेटर ऑन। ये क्या करता है, इंक्रीजेस द गर्थ और डायमीटर। ओके, अगर ऐसे है प्लांट, तो प्लांट विल स्लोली इंक्रीज एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस। जैसे बड़े बड़े पेड़ का तना जो फॉर्म होता है आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, दीज आर डन बाय दीज लैटरल मेरिस्टेम। ये साइड में ही पाए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से ये बेस्ड ऑन द पोजीशन, एपिकल, intercalary and the lateral meristem, these three kind of meristems are formed. Now on the basis of origin के basis पे again primary meristem and सबसे पहले आएगा primordial one. Primordial one are the embryonic one, then primary meristem and then the secondary one. This is 1, this is 2 and this is 3 in the serial wise. Okay, primary meristem will be the second one. First is primordial, those kind of meristem which are present at the embryonic stage. Embryonic stage मतलब कि जो embryonic development of plant के टाइम जो भी मेरिस्टेम को फॉर्मेशन होगा, those kind of meristem will be primordial या promeristem, या इसको एक और नाम से बोलते हैं eumeristem. Okay, so these are example में embryonic meristem. Then इसके बाद जब फॉर्म हो जाता है प्लांट, then primary meristems are formed from the beginning in plant. प्लांट के स्टार्टिंग में कौन सा मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका एग्जांपल में ही देखो, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलारी मेरिस्टेम। देन सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, लेटर ऑन फॉर्म होता है, इन्वॉल्व रहता है किसमें, थिकनेस में। एग्जांपल में लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे वो भी आ जाएगा क्या, इंटरफैस्किकुलर कैम्बियम, फैस्किकुलर कैम्बियम्स, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये सब we will see in the later part of the chapters. That is why I have not written. Then again, based on rate of division, vegetative part and reproductive shoot apex. Vegetative shoot apex मतलब forms vegetative part of the plant. Reproductive shoot apex मतलब form reproductive part like flower. Flower is reproductive part of the plant. So flower के formation में जितने भी मेरिस्टेम activity रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, reproductive shoot apex. Then on the basis of function, protoderm, procambium and ground meristem. Protoderm is epidermal ground tissue system का formation करता है. Procambium vascular tissue system का formation करेगा and ground meristem ground tissue system का formation करेगा. So 4 different kind of meristem जो है वो हम देख चुके हैं. It is not in the syllabus, that is why I am not going on to the slide in detail. यहीं से इतना देख ले. Next one is permanent tissue. Okay. Any doubt in the meristematic one? कितने में divided है, कैसे कैसे उसका function है? Any doubt in them?
Okay. No, ma'am. Let me revise once again. Meristematic tissues are actively dividing tissue. They are divided into 4 different bases. Okay, on the basis of position, on the basis of function, on the basis of origin, and on the basis of rate of division. 4 different kinds है. तो पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकेलरी, मेरिस्टेम एंड लैटरल वन. ठीक, फिर यही ऐसे भी देख लो. एपिकल मतलब जो टिप पे रहता है, इंटरकेलरी जो बीच का लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज करता है, और लैटरल वन जो मोटापा बढ़ाता है. देन आता है क्या, फंक्शन के बेसिस पे देखो तो प्रोकैम्बियम और क्या है, प्राइमोडियल और ग्राउंड वन. सो प्रोकैम्बियम क्या करेगा, एपिडर्मल बनाएगा फंक्शन वाला, और फिर नहीं, प्रोकैम्बियम वाला तो उल्टा मैंने बोल दिया. प्रोकैम्बियम वाज इन सम अदर वन. Protoderm, procambium, yes. So protoderm is the first one, epidermal one. Procambium will be in the vascular one, and ground one will be forming the ground tissue system. Next one will be what? Vegetative and reproductive one. Vegetative वाला vegetative part का formation करेगा. Reproductive जो मेरे stem है वो reproductive part यानी कि flower का formation करेंगे. फिर चौथा कौन सा था? Let me see once again. चौथा ये है, on the basis of origin. प्राइमोडियल यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, प्राइमरी यानी कि जो एपिकल और इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो लैटरल मेरिस्टेम है. नाउ कमिंग टू द परमानेंट टिश्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड. तो ये क्या है, मेच्योर सेल्स हैं, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, इनके पास स्टोरेज एबिलिटी है, वैक्यूल साइज इनका बड़ा है, नंबर भी वैक्यूल्स का बड़ा है क्योंकि इनको फूड स्टोर करना है. देन परमानेंट टिश्यूज आर लिविंग सेल्स होते हैं. इट कंटेन्स सम डेड सेल्स आल्सो, इट कंटेन्स लिविंग सेल्स आल्सो. टाइप्स कितने होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस स्पेशल वन, दिस इज नॉट इन द सिलेबस एट ऑल, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं. वी विल स्टडी द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वन. सिंपल टिश्यू क्या है, they are made up of structurally similar type of cells and they perform common function also. यानी कि अगर हम ग्रुप ऑफ लाइक अगर कहें क्लास 11th के 4-5 बच्चों को दिया जाए एक पर्टिकुलर टेस्ट सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है, ग्रुप में है, वो लोग एक सिमिलर काम कर रहे हैं यानी कि उस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन भी है और एक ही काम ही है. ठीक है, तो सेम वे सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन all together joined. Okay, again these are 3 different types: parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. Parenchyma नाम से ही हमेशा ये याद रखना कि parenchyma is the living tissue and sclerenchyma is the hard tissue. This question have been asked many times. Okay, what की कौन सा living tissue है, कौन सा dead tissue है in simple permanent tissues. So parenchyma is the living tissue and sclerenchyma is the dead tissue. बीच में ये कोलिनकाइमा ये लिविंग ही है, बट इसके कॉर्नर्स पे देखोगी थिकनिंग स्टार्ट हो जाता है. मतलब ऐसे याद रखो कि सीरियल वाइज में सबसे पहले बना कौन होगा, ये पेरेंकाइमा बना होगा, तब कोलिनकाइमा बना होगा, तब स्क्लेरेंकाइमा बना होगा. क्योंकि ये थिन वॉल्ड भी है, इसके पास कोई डिपोजिशन नहीं दिखता. इसके में क्या है, थोड़ा सा थिक वॉल हो जाएगा और इसके कॉर्नर पे डिपोजिशन भी दिखने लगेगा. फिर स्क्लेरेंकाइमा वंस क्या है, इसके पूरे सेल्स में डिपोजिशन दिखेगा, हाईली लिग्निन का डिपोजिशन, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं. अगेन यहाँ पे पेरेंकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू यानी कि सबसे पहले सिंपल टिश्यू को फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या है, पेरेंकाइमा. इट इज अ लिविंग टिश्यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पेरेंकाइमा कैसा है, लिविंग टिश्यू. देन प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि जब लिविंग टिश्यू है तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना ही है. थिन सेल वॉल है जिसको किससे बना है, सेलुलोज. दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. पेरेंकाइमा का जो सेल वॉल है किससे बना है, सेलुलोज से. इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, मैंने पहले बताया था. परमानेंट टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी होंगे, नहीं भी होंगे. तो इस वाले पेरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. अब शेप का यू कैन राइट एनी शेप, क्योंकि हर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप में मिलेंगे, ओवल, राउंड, रेक्टेंगल, इलोंगेटेड, लॉन्गिट्यूडनल, एवरीथिंग. फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड. जब पेरेंकाइमा है एंड परमानेंट टिश्यू का हर एक उसमें आएगा कि फूड स्टोरिंग है. ठीक है, तो फूड स्टोरिंग कैपेसिटी किसके पास है, दिस पेरेंकाइमा. Second one is secretion of important substances, okay, like pectin secretions, synthesis of food. अब ये हर पेरेंकाइमा नहीं करेगा, different forms of parenchyma is also there, like chlorenchyma, erenchyma, bast parenchyma, fiber parenchyma, different kind of parenchyma. तो हम लोग वो देखेंगे जो mainly important है. ठीक है, so those kind of parenchyma which are having chloroplast in them, those kind of parenchyma will be called as क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा किसका कॉम्बिनेशन है, क्लोरोप्लास्ट प्लस पेरेंकाइमा. वो क्या बनाएगा, क्लोरेनकाइमा फॉर्म करेगा.
और ये लोग क्या करेंगे, तब फोटोसिंथेटिक एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट है तो सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। ओके, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है कि पेरेन्काइमा के कुछ सेल्स या कुछ काइंड ऑफ पेरेन्काइमा ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी वी ऑल नो, द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, सो देयर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफिलिक, आई थिंक, हाँ, हाइड्रोफिलिक प्लांट. So these plants, how they are able to float on the surface of water with the help of buoyancy. और buoyancy कौन provide करेगा? These parenchyma cells. So parenchyma cells जिसके पास क्या होती है, air cavity present होती है, those kind of parenchyma will be called as parenchyma. स्पेशल पॉइंट के शॉर्ट नोट्स पे कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एरेनकाइमा एंड व्हाट इज क्लोरेनकाइमा. तो एरेनकाइमा किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा? एयर कैविटीज प्लस पेरेनकाइमा, ये दोनों ही मिलके क्या बना लेंगे? एरेनकाइमा. एरेनकाइमा मतलब कि एयर कैविटी की वजह से बायोन्सी आती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पे आसानी से फ्लोट कर सकते हैं. नाउ दिस वन पॉलेनकाइमा. पॉलेनकाइमा क्या है? अगेन ये भी क्या है? लिविंग है, इलास्टिक है, लेकिन देखो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है, यस, देखो ये पॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स पे अगर इफ यू सी, सो ये कॉर्नर्स पे क्या हो रहा है? लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जा रहा है, मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है ये कॉर्नर्स पे, और बाकी सिंपल में और कहीं नहीं डिपॉजिट हो रहा है, बस कॉर्नर कॉर्नर पे. तो ये जो कॉर्नर पे डिपोजिशन हो रहा है ना, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट. नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड अगेन, देखो कॉर्नर थिकनेस है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, ठीक, मेड अप ऑफ किसके किसके? सेल्यूलोज का भी है, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये तीनों का ही याद रखना, डिफरेंस काइंड ऑफ व्यू, कि पेरेन्काइमा इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, स्क्लेरेन्काइमा सॉरी कोलेन्काइमा इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन. अब स्क्लेरेन्काइमा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है? लिग्निन डिपोजिशन आ जाता है, इसीलिए डेड हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, शेप. अगेन वही, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, लॉन्गिट्यूडनल, कोई भी. शेप इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब जैसे कि ये लीफ है, लीफ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो एपिडर्मिस होता है. इसके नीचे इफ यू विल कट द ट्रांसफर सेक्शन, देन यू विल फाइंड व्हाट? पोलेनकाइमा. देन एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि वो बहुत पतली पतली पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स होती हैं, लीफ उतना चौड़ा नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है? पोलेनकाइमा एब्सेंट है. अगेन मैकेनिकल सपोर्ट किस लिए प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इसके पास हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन कॉर्नर्स पे आने लगता है, इसीलिए यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. सिर्फ यंग स्टेम और पेटियोल को ही प्रोवाइड करेगा. मेन मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से आता है? स्क्लेरेन्काइमा से, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, ग्रिटी होते हैं, इसलिए मेन मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं. ये सिर्फ छोटे छोटे स्टेम्स को और पेटियोल्स को प्रोवाइड करेगा सपोर्ट. दिस वन इज हार्ड टिश्यू, डेड टिश्यू है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, इसीलिए सेल वॉल बहुत ज्यादा थिकन हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, हाईली थिकन. इसमें यहाँ पे मैं बोल दूं कि स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल इज हाईली थिकन. किसका किसका बना होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन. लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इसी के डिपोजिशन की वजह से क्या होते हैं? सेल्स डेड हो जाते हैं ड्यू टू देयर डिपोजिशन. और सेल्स का डेड होना मतलब क्या? वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? अपने में हार्ड हो जाते हैं. जब हार्ड हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब रिजिडिटी रहेगा किसी भी चीज में तो क्या? हाईली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट किस लिए चाहिए होता है? टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एनी डैमेज. ओके, देन द सेल बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड. सेल्स आर पिटेड. पिटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ पिट्स. लाइक ऐसा एक्चुअल शेप नहीं होता, बट आई एम ड्रॉइंग, और भी मोटा ही होता है. सो नाउ सी, यहाँ पे क्या है? ये थिक एंड वॉल्स होते हैं, और भी ज्यादा थिक होते हैं. अब इन सेल्स के बीच में यू विल फाइंड सम पिट्स, यानी कि स्पेस. अपना काम करने के लिए जो ये स्पेस हो, ये क्या होते हैं? पिट्स होते हैं. अब पिट्स में क्या है? सेकेंडरी वॉल उस पिट्स में एब्सेंट होती है, और इसी पिट्स के थ्रू ही अदर एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यूज आर गेटिंग परफॉर्म्ड, एंड दे शेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स. ओके, सो पिटेड होते हैं, हाईली थिकन होते हैं, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, इसलिए डेड सेल्स होते हैं. फंक्शन में एक ही फंक्शन ही है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक, नाउ इसमें एक और चीज है, स्क्लेरेन्काइमा का ही टाइप है. यस, टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा के बेसिकली दो टाइप हैं, और इन चारों के बेसिस पे कैसे याद रखोगे? सॉफ्ट टी को रिप्लेस कर दो डी से, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर. किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन एंड डेवलपमेंट. इन चारों के बेसिस पे दो टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा है, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स. अब फाइबर्स क्या होते हैं?
सिलिंड्रिकल होते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होंगे, पॉलीगोनल होंगे। स्क्लेराइड्स ज्यादा पिटेड होते हैं। टैपरिंग एंड्स मतलब कि जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स को ही टैपरिंग एंड्स बोलते हैं। फाइबर्स विल बी हैविंग पॉइंटेड एंड्स, क्या होंगे, पिटेड होंगे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइबर्स में ज्यादा होगा। ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द थिक वॉल। इसमें जो बीच का स्पेस रहता है ना पर्टिकुलर सेल में, अब जबकि सारे सेल्स क्या है, इतने थिक हैं, हाईली थिकन है, तो ये जो बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये क्या है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इस बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फाइबर्स में। क्यों? क्योंकि थिक सेल वॉल है इसलिए। स्क्लेराइड्स में सेम वही चीज, पिटेड है, ऑब्लिटरेटेड वेरी स्मॉल ल्यूमेन। क्यों? क्योंकि इसमें भी लिग्निन डिपोजिशन है, इसमें भी सेल वॉल का थिक जो एरिया है वो ज्यादा है, इसीलिए क्या है, ल्यूमेन यहाँ पे भी कम रहेगा। एक्सट्रीमली थिक सेल वॉल, ये तो थिक था, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है। तो देखो इसमें ल्यूमेन कितना रिड्यूस हो गया है, हाईली रिड्यूस क्या हो जाता है, ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड, रिड्यूस ल्यूमेन मतलब ऑब्लिटरेटेड, वेरी स्मॉल। देन फाउंड इन कहाँ पे, अब देखो कुछ फ्रूट्स में जो फ्रूट्स का ग्रेटीनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, दिस स्क्लेरेट की वजह से। कौन कौन से फ्रूट हैं, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गवावा, सपोटा मतलब क्या होता है, ये चीकू। लीव्स ऑफ टी प्लांट का जो कुछ लीव है उसमें भी क्या होगा, ये ग्रेटीनेस यानी कि कड़ा। हार्डनेस ऑफ द फ्रूट कम्स फ्रॉम दिस स्क्लेरेट, and sclerate is part of what, sclerenchyma. Now sclerenchyma is part of the permanent tissues. So this is completed। या देखो स्क्लेरेट्स और फाइबर्स को यहाँ पे भी ऐसे दिखाया गया है। इसमें देखो पिट्स प्रेजेंट है, ये ज्यादा थिक वॉल है सेल का, इसकी वजह से ल्यूमेन कितना कम है। यहाँ पे देखो थिक है यहाँ पे भी, लेकिन उतना थिक नहीं है जितना स्क्लेराइड है। सो यहाँ पे भी ल्यूमेन क्या है, रिड्यूस है। यस, सो आई हैव कंप्लीटेड द सिंपल परमानेंट टिश्यू इन ऑल। एनी डाउट इन दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू? अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेक द स्लाइड, पहले जितना ऐसे ऊपर से देख लेते हैं, then we will catch up the slide what it has written over there. Now complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स वाले में वी ऑल नो, बचपन से ही जानते हैं, दो ही टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसको अगर हिंदी से रिलेट करो तो जाइलम इज व्हाट, ज से लिखते हैं, और फ्लोएम इज व्हाट, फ से लिखते हैं, ताकि याद कैसे रहे, जाइलम एंड देन ये लिखते हैं फ्लोएम ना। फ से फूड, ज से जल यानी कि वाटर। So xylem will be helpful in transport of water, phloem will be helpful in transport of food. खाना का जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा, फ्लोएम। एंड पानी का जो ट्रांसलोकेशन है वो कौन करता है, जाइलम। सो जाइलम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम विल बी हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो ज से जल यानी वाटर, फ से फूड यानी कि खाना। ठीक है, ऐसे अगर याद करना है तो यू विल बी एबल टू इजीली रिमेंबर। नाउ वी विल कंपेयर एंड स्टडी कि जाइलम फ्लोएम में क्या क्या है। सबसे पहले फंक्शन देख लो। फंक्शन में जाइलम का काम ही है पानी पहुंचाना, उसके साथ साथ मिनरल्स में क्या क्या है। अर्लियर इन वेरी ओल्ड बुक्स यू विल फाइंड कि पहले सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल्स का बात होता था, लेकिन नाउ रिसेंट स्टडीज लाइक 10 और 15 इयर्स आपकी किताब में क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स बोथ आर डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। देन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जाइलम में ओवरऑल जो इसके एलिमेंट्स है ना, वो 3 एलिमेंट तो डेड होते हैं। सो जब डेड का काम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और फ्लोएम में क्या है, ओवरऑल इसके 3 टिश्यूज तो 3 एलिमेंट है वो लिविंग होते हैं, तो लिविंग होते हैं इसलिए ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसका काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। नेचर क्या है, डेड कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि 4 एलिमेंट में से 3 क्या है, डेड है, एक ही लिविंग है। इसमें क्या है, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। सेम रीजन, 4 एलिमेंट में से सिर्फ एक डेड है और 3 लिविंग है। एलिमेंट क्या क्या है, ट्रेटेज, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। यहाँ पे आई हैव रिटन डेड क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है और एक ही लिविंग है। जहां भी पेरेन्काइमा आए, दिस वर्ड इटसेल्फ मींस कि यहाँ पे लिविंग सेल्स होगा, सेलुलोज का डिपोजिशन होगा, और ये क्या है, प्रोवाइड करेगा फूड स्टोरेज का काम, मतलब इसका काम हो जाएगा स्टोरिंग का। सेम वे phloem is also divided into 4 different elements: sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Fibers are dead cells here in the phloem part. अब देखो, I think this I have explained biological classification chapter और plant kingdom, I don't remember now. तो इसमें उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि gymnosperms are not having these vessels. Xylem vessels are not present in gymnosperm. Only exception was the order Nettles. Nettles में ही क्या क्या वेसल्स प्रेजेंट थे, अदरवाइज जिम्नोस्पर्म की पूरी फैमिली, पूरा जो किंगडम नहीं फैमिली, ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म की पूरी फैमिली थी वो क्या थी, वेसल्स से डिवॉल्व थी, यानी कि वेसल्स उसमें नहीं थे।
और अगेन जिम्नोस्पर्म मोस्ट एडवांस वो फैमिली है, तो इसमें तो सारे ही वेसल्स या सारे एलिमेंट जाइलम के मिलेंगे, जाइलम के भी मिलेंगे, फ्लोएम के भी मिलेंगे। और फ्लोएम में देखो जिम्नोस्पर्म में अगेन सेव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, लेकिन उनका काम कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनके काम के लिए भी देखो कुछ कुछ है, सेव सेल्स हैं और एल्बुमिनस सेल्स हैं। दीज इट इज जस्ट अ रिवीजन, प्रीवियस चैप्टर में मैंने ये दोनों चीजें बताई थी। देन टाइप्स, टाइप इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो anatomy is the chapter which you have to remember by heart or mind, क्योंकि इसमें हम लोग जब तक इंटरनली स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रांसफर सेक्शन कट करके नहीं देखते ना, तब तक समझ में नहीं आता अच्छे से। तो ये तो हम लोग अभी कर नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल प्रोवाइड ओनली व्हाट, प्राइमरी और सेकेंडरी वन का ट्रांसफर सेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए या होता है। तो जाइलम में और फ्लोएम में दोनों ही क्या है, दो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ जाइलम आर प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। अगेन टू टाइप्स ऑफ फ्लोएम विल बी प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम क्या है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम जितनी भी जाइलम का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी जाइलम हो जाएंगे। और ये क्या है, फर्स्ट परमानेंट टिश्यू जो प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से बनते हैं, वो क्या है, प्राइमरी जाइलम है। यानी कि जब वो पॉइंट जहां से ये मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है और परमानेंट टिश्यू में पहला जो जाइलम का फॉर्मेशन हुआ, वो सारे जाइलम कहाँ आएंगे, प्राइमरी जाइलम में आएंगे। देन प्राइमरी जाइलम इज अगेन ऑफ टू टाइप, कौन कौन से, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या है, फर्स्ट फॉर्म जाइलरी एलिमेंट। इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और फाइबर्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम में भी क्या बनता है, प्रोटोजाइलम, ठीक है। एंड देन लेटर मेटाजाइलम इज फॉर्म, इसमें साइज बड़ा होगा, ये मतलब सेकेंड नंबर पे बना है, तो जाहिर सी बात है फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें भी क्या है, दोनों ही बोथ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होते हैं, रूट और स्टेम में अलग अलग अरेंजमेंट दिखाते हैं। अब देखो दिस वन इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीट क्वेश्चन, यहीं पे देखो ऐसे बना रहता है। दोनों के रिस्पेक्ट में देखोगी तो यू विल गेट कंफ्यूज कि इंडार्च किस में है, एक्सार्च किस में है। रूट वाले में सिर्फ एक चीज को लेके देखना, प्रोटोजाइलम को, ये मेटाजाइलम वाले को छोड़ देना, या फिर सिर्फ मेटाजाइलम को लेना, प्रोटोजाइलम वाले को छोड़ देना, ठीक है। तो रूट में देखो एक्सार्च, एक्सार्च मतलब क्या, आउटसाइड, इंडार्च मतलब इनसाइड। I have written with respect to protoxylem only. You can write with respect to metaxylem also. So protoxylem is located towards the outside. मान लो ये रूट का ले लो, you will be able to see when you will cut the transverse section of any stem or root part. और उसके अंदर भी this I have drawn just the vascular part. vascular part के अंदर का ही ये दोनों चीज है, ठीक है। ये क्या है, vascular part है of stem और vascular part of root. तो रूट में क्या बोल रहे हैं, जाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। कौन सा, प्रोटोजाइलम। दूसरे पहले से यहाँ बड़ा होता जाएगा, ठीक है, बड़े वाले यहाँ पे, छोटे वाले बाहर, ऐसे, ठीक। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड। स्टेम में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटोजाइलम। अब यहाँ पे क्या होगा, आउटर वंस विल बी हैविंग द सेकेंडरी वंस एंड प्रोटोजाइलम विल बी इन द सेंटर। एक के रिस्पेक्ट में देखोगी तो यू विल बी इजिली एबल टू रिमेम्बर कि एक्सार्च और इंडार्च जो अरेंजमेंट है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का विद रिस्पेक्ट टू रूट एंड स्टेम, वो अलग अलग है। रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड। बट स्टेम में क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड। दिस इज जस्ट अ सिंपल वैस्कुलर पार्ट ऑफ द स्टेम। ये if you have done the practical, I have done in my school days. So when you will see a very very small portion or very thinly sliced cut portion of the root or stem part and will wash it, stain it and will see under the microscope. So ऐसा structure दिखेगा कुछ ऐसे। ये मैंने बड़ा सा बनाया है। तो इसमें क्या रहता है ना, पहले कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिखेगा, बोला। फिर उसके बाद क्या आता है, दिस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे इस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अब इसके अंदर भी देखो, ये वैस्कुलर टिश्यू के अंदर भी क्या दिखेगा तुम्हें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें पिथ और मेडुलरी रेस का अराइज होता है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर फिर यही सेम अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये तीनों यू विल बी एबल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप and this is given in the later part of the chapter, so I will discuss it here. Now yes, primary xylem खत्म। Now secondary xylem। सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है।
फॉर्म्ड फ्रॉम कहाँ से, सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर री डिफरेंशिएशन। अब देखो ये बार बार जो डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये बार बार आएगा टर्म। सो इसमें क्या होता है, पहले मेरिस्टेम जो है वो क्या होती है परमानेंट टिश्यू में डेवलप होती है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सो ये क्या होता है, पहले ये डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यूज में जाती हैं। तो सम परमानेंट टिश्यू अगेन इन केस ऑफ नीड दे अगेन री डिफरेंशिएट to form meristematic tissue. Again, this meristematic tissue will differentiate to form the permanent tissue. So this is a kind of cycle, and it is given in detail in plant growth and development chapter. So I will discuss this there. Okay. So secondary meristem is formed after redifferentiation. Secondary permanent tissues. पहले सबसे प्राइमरी जाइलम बनते हैं, अब उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। इसमें कोई डिवीजन नहीं है प्रोटो और मेटाजाइलम का, सिर्फ ये इतना ही काम करेगा। सेम वे फ्लोएम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बनता है, जिस टाइम ये बनेगा साइमल्टेनियसली उस टाइम ये भी बनता रहेगा साथ साथ। परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यानी कि जब सबसे पहले बना है तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू भी यही बन रहा है। फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करके ही बनाते हैं। इसमें भी वही सेम चीज, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम, इसका कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं दिया है अलग से। सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है आफ्टर री डिफरेंशिएशन। So this is all about what xylem and phloem. Xylem and phloem का क्या था, कैसे था, comparative study. Now elements of the xylem and phloem जो main study करना है हम लोग को, tracheids, vessels, fibers, parenchyma, shape tubes, companion cells, क्या क्या है xylem and phloem में, we will see together. Elements of xylem. First element is tracheids. Tracheids कैसा होता है, elongated होता है, tapering ends होते हैं, ऐसे kind of होता है, जहाँ पे पॉइंटेड और टैपरिंग इंस मिलेंगे, इलांगेटेड होगा और वेरियसली शेप्ड रहता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिकनेस मिलेंगे। कहीं पे स्पाइरल देखोगी तो कहीं पे ओवल शेप्ड थिकनेस मिल जाएगा, कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल थिकनेस मिल जाएगा, बहुत सारे काइंड ऑफ थिकनेस मिलेंगे। मतलब कि एक ही ट्रैकेड्स के सेल में बहुत सारे अलग अलग काइंड के थिकनिंग मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे अलग अलग काइंड के लिग्निन डिपोजिशन मिलेंगे। अब यूनिसेलुलर है, वन ट्यूब वन सेल, मतलब कि इसका एक जो ये है ना, ये क्या है, सिर्फ एक सेल का बात हो रहा है, ठीक, इससे अटैच जो भी दूसरा सेल आएगा वैसे अटैच होगा। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर, वन ट्यूब वन सेल, एक ट्यूब एक सेल का काम करता है। इट फॉर्म्स ऑफ 90% ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म। सिंस जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स का जो कंडक्टिंग टिश्यू है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन बन जाता है, ये ट्रैकेड बन जाता है। इसमें क्या है, सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है, मतलब कि जो बीच का ल्यूमेन है वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, लिग्निफाइड हो जाता है, लिग्निन डिपोजिशन। इसमें मैंने स्पाइरल वन बनाया है, स्पाइरल लिग्निन डिपोजिशन, पॉइंटेड टैपरिंग एंड्स। नेक्स्ट वन इज वेसल्स। वेसल्स में क्या है, परफोरेटेड एंड्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। पोर्स किस लिए होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब एक वेसल से दूसरे वेसल जब जाना है तो कुछ तो रहना चाहिए जिसके थ्रू जाएगा। दिस परफोरेटेड पोर्स आर समवॉट लाइक व्हाट, छन्नी। छन्नी क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक छन्नी, अगर कई सारी छन्नी को एक साथ लगा दो सो दैट विल एक्ट एज परफोरेटेड पोर। ओके, सो इसमें भी क्या है, वही सेम चीज। Through these perforated pores, water will get transported into the cells of xylem. These are cylindrical in structures, made up of many vessel membrane. अब देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, जैसे ये एक वेसल हुआ, then this will be the second vessel, this will be the third vessel. तो यहाँ पे बहुत सारे वेसल मेम्ब्रेन देखो, still 1 2 3 different kind of vessels are there, but they are still attached. So ये क्या है, group of मल्टीसेलुलर सेल्स। मल्टीसेलुलर है, वन ट्यूब मेनी सेल्स, एक ही ट्यूब है लेकिन देखो सेल कितने हैं, 1 2 3, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन हो जाते हैं वेसल्स के लिए, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उनका साथ में रहता है। दे ऑल्सो हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निन का डिपोजिशन जाइलम में ज्यादा मिलेगा ही, क्योंकि उसमें 3 बेसिक सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। देन जाइलम फाइबर्स, ल्यूमेन, इसमें भी क्या है, ऑब्लिटेरेटेड यानी वेरी स्मॉल ल्यूमेन इज फाउंड, इलोंगेटेड है, टैपरिंग एंड्स भी है, इसमें भी पिटेड है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है, जहां पे भी लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो सेल डेड हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेट और एसेपरेट। अब ये सेपरेट और एसेपरेट वाला दिस यू विल सी इन द क्लास 12th मेनली। नाम क्या है सेपरेट और एसेपरेट। एक जो जाइलम फाइबर्स हैं लाइक दिस वन, वो दूसरे जाइलम फाइबर से जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें किसी किसी में सेप्टा प्रेजेंट भी होता है, किसी किसी में नहीं होता। तो जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा वो सेपरेट कहलाएगा, जिसमें नहीं होगा वो एसेपरेट कहलाएगा। देन जाइलम पेरेन्काइमा, दिस इज द ओनली लिविंग सेल व्हिच इज फाउंड इन द जाइलम वेसल्स, सॉरी, which is found in the whole xylem tissue. Then it is present in all type of plants. From starting one,
लाइक जहां से प्लांट किंगडम का फैमिली स्टार्ट हुआ है वहां से लेके एंजियोस्पर्म्स तक, ठीक है। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फैमिली विल कंटेन दिस जाइलम पेरेंकाइमा, क्योंकि फर्स्ट इवॉल्व हुआ सेल भी क्या है, यही है, फर्स्ट इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फर्स्ट इवॉल्व। देन लिविंग सेल है, लिविंग सेल्स के पास थिन सेल वॉल होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। और मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो हमेशा सेलुलोज के ही बने होते हैं। और जो लिविंग सेल्स हैं जहां पे भी सेलुलोज से बना है वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू मेड्यूलरी रेज। अब देखो मेड्यूलरी रेज इन दिस फिगर, यहाँ मैंने बनाया था, इसी में बनाया था। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, इसी में क्या होता है, मेड्यूलरी रेज होते हैं। तो मेड्यूलरी रेज क्या करते हैं, वो रेडियली वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिर्फ पानी ऊपर थोड़ी जाना है, इसको पूरे पूरे लीफ और हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना है। तो रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डन थ्रू द मेड्यूलरी रेज, एंड दीज मेड्यूलरी रेज आर फाउंड इन द which part, in xylem parenchyma part. Okay, then element of xylem is completed. Now element of phloem, same वही चीज, sieve tube, companion cells and phloem parenchyma and phloem fibers. So sieve tubes क्या है, न्यूमरस साइज होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स में है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज व्हाई एन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब देखो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल एक्टिविटी। जब इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसकी सेल को एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है। यहाँ से देखो ये पूरा जो सिर्फ सेल्स है, इसके बगल में देखो कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल विल ऑलवेज बी अटैच टू द सिव ट्यूब्स। जहां भी सिव ट्यूब है उसके बगल में तुम चिपका हुआ देखोगे सिर्फ कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल के पास तो अपना न्यूक्लियस है। कंपेनियन सेल क्या करता है, इतनी अच्छी दोस्ती है इन लोगों की कि ये क्या करता है, अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा अपने सेल का काम तो करेगा ही, इस सिव ट्यूब के जितने भी सेल हैं उन सारी सेल की एक्टिविटी को भी कौन देखता है, दिस कंपेनियन सेल, ठीक है। तभी इसको क्या बोलते हैं, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल, इन दोनों को तभी क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, अपनी एक्टिविटी भी साथ साथ परफॉर्म करते हैं। और कंपेनियन सेल इसलिए भी बोलते हैं, सिस्टर सेल इसलिए भी बोलते हैं कि दोनों का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, वो सेम है। Then functions are controlled by companion cells. Sieve tubes and companion cells are connected via pith fields. किसके थ्रू कनेक्टेड है, pith fields which are arranged longitudinally. देखो यहाँ पे हल्का हल्का जो गैप है ये क्या है, pith field है, जिसके थ्रू क्या होता है, कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब में कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। वही चीज सिस्टर सेल, सिस्टर सेल क्यों है, एक तो दोनों साथ साथ वो फॉर्म करते हैं, काम करते हैं, दूसरा इनके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी कि जहां से भी जो कंपेनियन सेल बना है उसी जगह से सिव ट्यूब का भी अराइज हुआ है। देन कंपेनियन सेल, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड पेरेंकाइमेटर सेल्स हैं, लिविंग है इसलिए सेलुलोज कंटेन किए रहेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना है, मतलब कि ये फूड का ग्रेडियंट जहां ज्यादा होगा, जहां एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा, तो उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, कंपेनियन सेल। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम पेरेंकाइमा, ये क्या है, लिविंग सेल है, थिन वॉल्ड है, जो भी लिविंग सेल है उसके पास सेलुलोज का सेल वॉल होगा। न्यूक्लियस क्या है, इनका प्रोमिनेंट है। इन मेन पॉइंट क्या है कि ये फ्लोएम पेरेंकाइमा दीज आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ये फ्लोएम पेरेंकाइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये फूड स्टोरिंग का काम करते हैं और मोनोकॉट्स के प्लांट क्या रहते हैं, आराम से बहुत थिन होते हैं और इजिली स्टोर करते हैं, वो खुद ही कमजोर रहते हैं, तो बराबर क्या होते रहते, फॉर्म होते रहते हैं, इसलिए उनको फ्लोएम पेरेंकाइमा को उतना जरूरत नहीं रहता। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या है, बास्ट फाइबर्स हैं, डेड सेल्स हैं क्योंकि लिग्निफाइड हैं। देन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस में क्या है, ऑलरेडी लिग्निन का डिपोजिशन है, इसलिए फ्लोएम फाइबर्स भी क्या है, डेड सेल्स हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यूज एज कॉमर्शियल फाइबर्स, जो जूट और फ्लैक्स वगैरह होते हैं वो भी क्या है, इन्हीं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज, यानी कि जो बोरा वगैरह रहता है वो भी किससे फॉर्म होता है, फ्लोएम फाइबर्स वाले टाइप ऑफ टिश्यू या सेल से। देन एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में क्या है, एब्सेंट है, और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या है, प्रेजेंट है। मतलब कि फ्लोएम फाइबर्स विल बी ओनली सीन इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स दिखेंगे भी नहीं। सो दिस इज कंप्लीटेड माय टिश्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस टॉपिक, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग? If you want, I can go through the slide. If you don't want, let it remain as it is. See, this I have explained. Everything is explained. There's limited tissue. This one explained. Simple one explained. Yes. So I think I have covered everything related to this plant tissue. Now, in the next class, that is tomorrow, I will cover the tissue system.
Tissue system means epidermal, ground or vascular tissue system. Then in the next class only I will go through this slide as a form of division only. Any doubt in today's class, Faika and Sana? No, ma'am. Okay.